Yeah. So mechanical properties of fluids. हाइड्रोडायनेमिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं. पिछली क्लास में हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो वहां पे हम लोग विस्कोसिटी पढ़े थे, स्टोक्स लॉ पढ़े थे, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सारी चीजें पढ़े थे. आज हम लोग बेसिकली क्रिटिकल वेलोसिटी और स्ट्रीमलाइन, लैमिनर, टर्बुलेंट फ्लो ये सब करेंगे, और रेनॉल्ड्स नंबर करेंगे, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करेंगे. तो ये सारी चीजें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तक आज करेंगे. And then next class we will do Bernoulli's theorem and other stuff, the application of that. So equation of continuity is very important in terms of numericals. तो पहले तो स्ट्रीमलाइन, लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है. कंसिडर अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ए बी. तो हमारे पास एक ट्यूब है, लेट्स से ये एक ट्यूब ए बी दे रखा है, और इसमें एक लिक्विड फ्लो कर रहा है ट्यूब के अंदर. So consider a liquid flowing through a tube AB as shown in the figure. Let V1, V2, V3 be the velocities of a particle of the liquid at point P, Q and R. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी लिक्विड का P है, यहाँ पे वेलोसिटी लिक्विड का Q है, और R पॉइंट पे वेलोसिटी V3 है. तो V1, V2, V3 velocity of liquid at point P, Q and R है. If the velocity of the successive particles ऑफ द लिक्विड रिमेन अनचेंज, मतलब इसके पीछे जो पार्टिकल है वो जब P पे पहुंचेगा उसका भी वेलोसिटी अगर V1 है, Q के पीछे जो पार्टिकल आ रहा था वो जब Q पे पहुंचेगा उसका भी वेलोसिटी अगर V2 होता है, और R के पीछे जो एक पार्टिकल है वो जब R पे पहुंचेगा अगर उसका भी वेलोसिटी V3 ही होता है जितना पहले था पार्टिकल का. सो इस केस में, ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये एक फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो है. So let V1, V2, V3 be the velocities of particle of the liquid at points P, Q and R respectively on its path. If the velocity of successive particle of the liquid remain unchanged, that is all other particles of the liquid pass through P with velocity V1, through Q with same velocity V2, and through R again with the same velocity V3, the flow of liquid is said to be orderly and is called स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है. तो ये अगर P पॉइंट पे जो इसका वेलोसिटी V1 है, Q पे इसका वेलोसिटी V2 है, और R पे वेलोसिटी V3 है, और उसके पीछे जो पार्टिकल आ रहा है उनका भी वेलोसिटी V1, V2, V3 ही है जब वो P, Q और R पे पहुंचता है. ऐसे फ्लो ऑफ लिक्विड को हम लोग ऑर्डरली, है ना, द फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी ऑर्डरली, स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो. तीनों एक ही चीज है. क्लियर है सबको? Yes, sir. So in this flow, every particle of liquid follows the path of its preceding particle, and velocity of all the particle crossing a particular point is the same. So, but the velocity of the particle at different point in their path may not necessarily be same. मतलब देखो, velocity of the particle P, Q और R पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन P पॉइंट पे जो भी पार्टिकल फ्लो करेगा उसका वेलोसिटी सेम होना चाहिए. So if in this flow every particle of liquid follows the path of its preceding particle, and velocity of all the particle crossing a particular point is the same, but the velocity of the particle at different point in their path may not necessarily be same. ठीक है. Thus, streamline flow of a liquid is that flow in which every particle of the liquid follows exactly the path of its preceding particle and has the same velocity in magnitude and direction as that of its preceding particle while crossing through that point. So streamline flow में क्या होता है? Is that flow in which every particle of the liquid follows exactly the path of its preceding particle. जो इसके आगे वाला particle जो path follow किया था उसी path को follow करेगा पीछे वाला particle भी, and has the same velocity in magnitude and direction. पाथ भी सेम फॉलो करेगा और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो वेलोसिटी का है उस पॉइंट पे वो भी सेम होगा ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल व्हाइल क्रॉसिंग थ्रू द पॉइंट.
Streamline flow is accompanied by streamlines. So streamline is the actual path followed by the procession, of particles in a steady flow, which may be straight or curved such that tangent to it at any point indicates the direction of flow of liquid at that point. तो जो path follow कर रहा है उस path को streamline कहते हैं. जैसे अगर ये जो particle जो है, ये जो dotted line से show हो रहा है, ये particle का ये path है, तो ये इसको streamline बोलेंगे. ठीक है ना? तो streamline जो है, streamline is the actual path followed by the procession of particle. Procession of particle मतलब एक के बाद एक particle उसी path को follow करे in a steady flow which may be straight or curved. So that path may be straight or it may be curved such that the tangent to it at any point indicates the direction of flow of liquid at that point. तो जो कर्व है उस कर्व का किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो ऐसे कर्व है स्ट्रीमलाइन का, अब हमें इस पॉइंट पे ना हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा इस पॉइंट पे. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन. पहला प्रॉपर्टी, इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर. मतलब कुछ ऐसा तुमको नहीं मिलेगा कभी भी स्ट्रीमलाइन क्रॉसिंग ईच अदर. क्यों? क्योंकि सेम रीजन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं करेगा बिकॉज इस एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है. वही सेम चीज यहाँ पे भी है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्रॉस नहीं कर सकते. उसी तरह स्ट्रीमलाइन फ्लो का जो स्ट्रीमलाइंस है वो क्रॉस नहीं कर सकता. अगर क्रॉस करेगा तो इस पॉइंट पे ये भी एक डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का और ये भी डायरेक्शन हो गया. दोनों कर्व का टेंजेंट हम लोग बनाएंगे तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे. No two streamlines can cross each other. If they do so, the particles of the liquid at the point of intersection will have two different directions of their flow. This will destroy the steady nature of the liquid flow. एक पार्टिकल का एक ही डायरेक्शन हो सकता है ना फ्लो का. अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन हो गया तब तो वो स्टेडी नेचर हुआ ही नहीं, तब तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हुआ ही नहीं. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So the greater is the crowding of streamlines at a place, greater is the crowding of streamlines at a place, the greater is the velocity of liquid particle at that place and vice versa. जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा किसी भी जगह पे उतना ज्यादा वहां पे हम कहते हैं वेलोसिटी. मतलब कि ये सब चीज वही है. देखो डेंसिटी जैसे स्ट्रीम जहाँ पे भी डेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम कहते थे कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे वैल्यू उसका ज्यादा है ना, प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोग पढ़े. तो यहाँ देखो डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है. तो जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होता है वहां पे वेलोसिटी ग्रेटर होता है. So greater is the crowding of streamlines at a place, the greater is the velocity of the liquid particle at that place and vice versa. Clear है बच्चों? आ गया समझ? Yes, sir. Now next, tube of flow. So a tube of flow is the bundle of streamlines having the same velocity of the liquid particle over any cross section perpendicular to the direction of flow of the liquid. Tube of flow उसको कहेंगे अगर bundle of streamlines का. So let's say this is the bundle of streamlines having the same velocity of the liquid particle over any cross section. तो अब यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन पे देखें, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो जितने भी बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस पास कर रहे हैं उन सब का वेलोसिटी अगर सेम है तो इस बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन को हम लोग ट्यूब ऑफ फ्लो कहते हैं. ठीक है. इट हैज बीन सीन दैट द फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी स्ट्रीमलाइंड if the velocity of liquid flow is always less than the critical velocity of the liquid. So the value of critical velocity is different for different liquids. Critical velocity होता क्या अभी थोड़ी देर में हम लोग करेंगे आगे. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि flow of liquid will be streamlined. Streamline तभी flow होगा if the velocity of liquid flow is always less than the critical velocity of the liquid. Critical velocity से ज्यादा velocity होगा तो streamline कभी भी flow नहीं होगा. क्रिटिकल वेलोसिटी से कम जब ये होगा वेलोसिटी तो तभी उसी कंडीशन में ही स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा.
द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स, ठीक है। अब लैमिनर फ्लो, so if a liquid is flowing over a horizontal surface with a steady flow and moves in the form of layers of different velocities which do not mix with each other, then the flow of liquid is called laminar flow. Okay, तो अब ये देखो, if a liquid is flowing over a horizontal surface, मान लो कि एक horizontal surface पे liquid flow कर रहा है with a steady flow and moves in the form of layers, तो लिक्विड क्या है, लेयर्स के फॉर्म में फ्लो कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, अलग अलग लेयर है अलग अलग वेलोसिटी का, विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। मान लो जैसे ये ट्यूब में ये हमारा सिलिंड्रिकल पाइप है, उसमें लिक्विड जा रहा है और अलग अलग लेयर्स में फ्लो कर रहा है, ये देखो सारे लेयर्स हैं, सिलिंड्रिकल लेयर्स हैं, तो ये सिलिंड्रिकल लेयर्स का इसका वेलोसिटी सबसे कम है, उसके बाद वाले का उससे ज्यादा ज्यादा एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे सेंट्रल वाला जो होगा उसका सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, राइट। तो liquid is flowing over a horizontal surface with a steady flow and moves in the form of layers of different, moves in the form of layers of different velocities which do not mix with each other, then the flow of liquid is called laminar flow. Thus, a flow in which the liquid moves in layers is called laminar flow. In this flow, one layer slides over the other layer of liquid. तो ऐसा फ्लो जिसमें लिक्विड लेयर्स में मूव करता है एक दूसरे के ऊपर, उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। In this flow, the velocity of liquid flow is always less than the critical velocity of the liquid. In general, laminar flow is a streamline flow only. Laminar flow is an example, मतलब is a type of streamline flow only. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बता भी रखा है, देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ स्टेडी फ्लो, यहाँ शुरू में ही बताया हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लैमिनार फ्लो है और इसका वेलोसिटी हमेशा क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस है, और क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस है मतलब ये क्या है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। सो in this flow the velocity of liquid flow is always less than the critical velocity of the liquid. In general, laminar flow is the streamline flow, ठीक है। अब आते हैं टर्बुलेंट फ्लो पे। So when a liquid moves with a velocity greater than its critical velocity, ठीक है, when a liquid moves with a velocity greater than its critical velocity, the motion of the particle of liquid becomes disorderly or irregular. Such a flow is called turbulent flow, है ना। तो यहाँ पे देखो, देखिए क्या है, जब लिक्विड जो है, लिक्विड फ्लोज विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा अगर स्पीड होगा तो जो मोशन है वो फिर वहां पे स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। सच अ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, है ना। द मोशन ऑफ द लिक्विड पार्टिकल ऑफ द लिक्विड बिकम्स डिसऑर्डरली और इररेगुलर, स्टेडी फ्लो नहीं होता है। In a turbulent flow, the path and the velocity of the particle, the path and the velocity of the particles of the liquid change continuously and haphazardly with time from point to point. In a turbulent flow, most of the external energy maintaining the flow is spent in producing eddies in the liquid, and only a small fraction of energy is available for forward flow. For example, eddies are seen by the sides of the pillars of the river bridge. तो जनरली रिवर ब्रिज के पिलर के आसपास देखोगे ना, इस तरह से भंवर जैसा बन जाता है। एडी मतलब भंवर जैसा जो होता है, भंवर समझते हो ना, जो गोल गोल एडी ऑफ, मतलब जो उसको क्या बोलेंगे, सो यू नो दीज काइंड ऑफ फ्लो इज बीइंग फॉर्म्ड। आपको इस तरह से चैनल्स ऐसे बने हुए दिखेंगे, ठीक है, ब्रिजेस के पिलर्स के आसपास, या कोई भी अगर रास्ते में कोई एक मतलब रिवर फ्लो कर रहा है और रास्ते में अगर कोई एक पिलर आ गया या फिर कोई एक पेड़ आ गया, या इन सब से टकरा के वो जो है एडी करंट फ्लो करता है,
प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल कहते हैं. सो इन अ टर्बुलेंट फ्लो द पाथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड चेंज कंटिन्यूअसली एंड haphazardly with time from point to point. तो path will not be same, velocities will also be not same, है ना. In a turbulent flow, most of the external energy maintaining the flow is spent in producing eddies in the liquid, and only a small fraction of energy is available for forward flow. For example, eddies are seen by the sides of the pillars of the river bridge. ठीक है. So, Yes. are these properties true for all particles in air also? या फ्लूइड के लिए पूरा सभी के लिए होगा, लिक्विड और मतलब जो फ्लूइड्स के लिए भी ये सेम चीज ट्रू होगा. ठीक है. फ्लूइड्स में मतलब लिक्विड और एयर दोनों आ जाएगा, तो दोनों के लिए हम लोग करेंगे. बट जनरली जो क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखते हैं ना, वो उसमें एयर का तो मेंशन कम ही रहता है. आप देखोगे कि वाटर के फ्लो या लिक्विड के फ्लो के बारे में ही बात की हुई होती है. But yeah, but this is true for this can be true for air also. Okay. Now critical velocity. The critical velocity is that velocity of excuse me. So critical velocity is that velocity of liquid flow up to which its flow is streamlined and above which its flow becomes turbulent. तो अभी हम लोग बात कर भी रहे थे क्रिटिकल वेलोसिटी का पीछे, तो वहां पे हमने देखा था कि वो वेलोसिटी जिससे so velocity of liquid flow, if it is less than the critical velocity, then it is streamlined flow, and if it is more than the critical velocity, then it is a turbulent flow. So the critical velocity is that velocity of liquid flow up to which its flow is streamlined and above which its flow becomes turbulent. तो ये एक बाउंड्री कंडीशन है बेसिकली, जो कि लिक्विड के फ्लो को डिसाइड करता है कि स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा, डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड. The critical velocity Vc of liquid flowing through a tube depends upon coefficient of viscosity of liquid. तो critical velocity depend क्या क्या चीज पे करता है. देखो ये सारे जितने भी ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला जो प्रूफ देखोगे ना, सब सारे प्रूफ्स डायमेंशनल फॉर्मूला से ही है ना प्रूफ होते हैं, जो डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो प्रूफ होता है. तो यहाँ पे देखो इसका डिपेंडेंसी हम लोग देखते हैं कि कफिशिएंट ऑफ किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है. कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है ईटा पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द ट्यूब आर पे डिपेंड कर रहा है. ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है. यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन वी कैन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी एज k टाइम्स k इज अ कांस्टेंट, ईटा रेज टू द पावर a, rho raised to the power b, and r raised to the power c, where k is a dimensionless constant in a, b, and c are dimensions. ठीक है. So where k is a dimensionless constant and a, b, and c are dimensions of Vc in terms of coefficient of viscosity, density of liquid, and radius of the tube. In dimensional form, the equation 11 can be written as, अब देखो ये जो स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t-1 हो गया, कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो है m1 l-1 t-1 हो गया. ठीक है. डेंसिटी का ml-3 हो गया और रेडियस का l हो गया. तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, m रेज टू द पावर a प्लस b, l रेज टू द पावर माइनस a माइनस 3b प्लस c. ठीक है. और t रेज टू द पावर माइनस a हो गया. तो ये देखो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ मास का, लेंथ का और टाइम के डायमेंशंस को इक्वेट कर देंगे और a b c का वैल्यू निकाल लाएंगे. सो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन वी गेट, यहाँ पे m के डायमेंशन को जब इक्वेट करोगे 0 इज इक्वल टू a प्लस b, उसके बाद l रेज टू द पावर 1 है, l रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 3b प्लस c, और माइनस 1 इज इक्वल टू, टाइम का डायमेंशन यहाँ -1 है, यहाँ माइनस है, -1 इज इक्वल टू माइनस a. राइट. तो अब हम लोग इसको a प्लस b इज इक्वल टू 0 है, b को -a लिख सकते हैं,
पावर ऑफ टाइम करेंगे -1 इज इक्वल टू -a, तो a का वैल्यू 1 हो गया, राइट। a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -a है, तो b का वैल्यू -1 हो गया। उसके बाद -a + 3 -a - 3b + c है, b का वैल्यू -a डाल दिया और a का वैल्यू जब 1 आ गया तो 2a, तो c इज इक्वल टू 1 - 2 -1 हो गया। तो c का वैल्यू -1, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1। तो ये तीनों वैल्यूज a, b और c के जब पता चल गया हमें, तो अब हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन 11 में। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज k इंटू ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू द पावर 1, डेंसिटी रेज टू द पावर -1 एंड रेडियस रेज टू द पावर -1। सो ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू r। सो फॉर द फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन, है ना, अगर ये फ्लो जो है, दिस फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन, वैल्यू ऑफ vc शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। फॉर दिस ईटा शुड बी लार्ज, रो एंड r शुड बी स्मॉल। तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी को ज्यादा होना है, मतलब फॉर द फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन, तो vc जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, तो vc शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो vc को अगर ज्यादा होना होगा तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होना है और डेंसिटी और रेडियस क्या होना है, कम होना है। अब इसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर एक होता है। सो रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्योर नंबर दैट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। मतलब रेनॉल्ड्स नंबर से हम लोग को पता चलता है कि नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या है, कि स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, ये पता चलता है हमें। So according to Reynolds, the critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube of diameter d is given by. So Reynolds was a physicist who said that the critical velocity is equal to n in nr, coefficient of viscosity, rho into d। ठीक है। So वहां पे जैसे रेडियस था, यहाँ पे डायमीटर क्रिटिकल वेलोसिटी के केस में, और यहाँ पे जो k था, है ना, जो k था उसको हम लोग nr से रिप्लेस कर दे रहे हैं, बेसिकली nr और ये 2r, nr/2 इज इक्वल टू k बेसिकली, है ना। तो ये vc इज इक्वल टू nr इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रो इंटू डायमीटर d। ये जो रेनॉल्ड्स नंबर nr है, दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रो d को इधर ले जाएंगे तो रो इंटू d इंटू vc डिवाइडेड बाई ईटा। So where eta is the coefficient of viscosity of the liquid, rho is the density of liquid, right? nr is a constant called Reynolds number, okay? तो nr हमारा constant है, Reynolds number, rho is the density of the liquid, d is diameter of the tube, vc is critical velocity, and eta is coefficient of viscosity. The value of Reynolds number nr is independent of the system of unit used for the measurement of various quantities in the 15th wala equation. So if the value of Reynolds number lies between 0 to 2000, मान लो तुमने ये कैलकुलेट किया वैल्यू और ये कुछ 0 और 2000 के बीच में आया, मतलब 0 is less than nr is less than 2000, तो उस केस में द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन और लैमिनर। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, ठीक। और यही अगर ये जो है फॉर वैल्यूज ऑफ nr above 3000 द फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट, है ना। तो 3000 से ऊपर फ्लो ऑफ लिक्विड इज, इफ nr इज ग्रेटर देन 3000 द फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट। For value of nr between 2000 and 3000, so 2000 less than nr is less than 3000. So for value of nr lying between 2000 to 3000, the flow of liquid is unstable, changing from streamline to turbulent flow, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांजिशन फेज है जहां पे स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में जो है ना कन्वर्ट होता है।
सो 0 से 2000 जब रेनॉल्ड्स नंबर है तब वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, जब 2000 से 3000 है तो उस केस में the liquid is unstable, changing from streamline to turbulent flow, and greater than 3000 the flow is turbulent. Is it clear? Yes, sir. Now, physical significance of Reynolds number. Reynolds number describe the ratio of inertial force per unit area to the viscous force per unit area for a flowing liquid. So consider a tube of small area of cross section A through which fluid of density rho is flowing with velocity v. The mass of fluid flowing through the tube per second is volume flowing per second into density. भाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इंटू डेंसिटी कर दोगे तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड निकल गया. सो मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब पर सेकेंड अगर निकालना है डेल्टा एम, दैट इज ए वी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इंटू डेंसिटी रो. ठीक है. सो मान लो ये पाइप है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका जो स्पीड जो लिक्विड ट्रेवल कर रहा है वो v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो a इंटू वी करोगे तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकल गया. वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज a इंटू वी. इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड हो गया. राइट, वही चीज दे रखा है यहाँ पे. नाउ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय एरिया. ठीक है. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डेल्टा एम इंटू वी बाय ए. अब डेल्टा एम का वैल्यू यहाँ से डाल देंगे इसमें तो हम लोग को निकल जाएगा ए वी रो इंटू वी बाई ए. सो दिस इज ए और ए कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर इंटू रो. नाउ विस्कस फोर्स. ठीक है. नाउ विस्कस फोर्स एफ इज इक्वल टू ईटा ए वी बाय आर इन मैग्नीट्यूड. ओके. अब where r is the radius of the tube and v by r is the velocity gradient between the layers of the liquid flow. So अब ये viscous force per unit area निकालना होगा तो f by a कर देंगे तो eta v और eta v by r a यहाँ पे था, a से डिवाइड हो गया तो eta v डिवाइडेड बाय r, ये हमारा विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया. तो अभी हम लोग जो वैल्यू कर रहे थे तो यहाँ पे फोर्स जो था F इज इक्वल टू ईटा ए वी अपॉन आर हो गया और F अपॉन ए को ले जाके इधर डिवाइड कर देंगे तो ईटा वी बाय आर हो गया. नाउ रेनॉल्ड्स नंबर इज रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया. विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग निकाल चुके हैं. इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया हमें पता है, जो अभी हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय एरिया कर रहे थे तो उससे वी स्क्वायर बाय रो आया है ना. फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ये है. रेनॉल्ड्स नंबर इज इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया. तो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया इज वी स्क्वायर रो एंड विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया इज ईटा वी बाय आर. अब लेट्स कैंसिल दिस, वी हैव सिंगल वी. ओके. और ये आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, वी रो आर डिवाइडेड बाय ईटा. सो दिस इज द रेनॉल्ड्स नंबर. तो रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का ये दूसरा फॉर्मूला है. क्लियर है बच्चों? Now equation of continuity. So consider a non-viscous liquid in streamline flow through a tube AB of varying cross section. So equation of continuity क्या कहता है कि जितना mass of liquid इस part से flow करके जा रहा है, इसमें अंदर जा रहा है, उतना ही mass of liquid per unit time इसमें से बाहर आ रहा है. तो volume of liquid going inside per unit time is equal to volume of liquid coming out. अगर ये streamline flow है, मतलब कि liquid incompressible है, तो जितना liquid अंदर घुसेगा पाइप में उतना ही liquid उस साइड से निकलेगा, right? उस moment of time पे.
So consider a non-viscous liquid in streamline flow through a tube AB of varying cross section. यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अलग अलग है ना, चेंज कर रहा है क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, ये नैरो है. Now let A1 and A2 is the area of cross section of the tube at A and B. मान लो इस पार्ट में एरिया A1 है और इस पार्ट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है. V1 V2 is the velocity of flow of liquid at point A and B. इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है एंटर करने का वो वेलोसिटी V1 है और जो बाहर निकलने का वेलोसिटी है वो V2 है. ठीक है. ρ1 and ρ2 is the density of liquid at A and B. तो हम लोग ये मान रहे हैं कि दोनों पॉइंट पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड अलग अलग है. बाद में हम लोग देखेंगे कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के केस में ρ1 और ρ2 दोनों बराबर ही होते हैं. बट ठीक है, अभी हम लोग मानते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट ए इज ρ1 और डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट बी इज ρ2. ठीक. नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड. So volume of liquid entering per second is density, area into velocity. So area of cross section into velocity will give you the volume of liquid entering per second, rate of flow of liquid, rate of volume, rate of change of volume which is flowing inside it. So ये क्या हो जाएगा, A1 into V1 हो जाएगा, है ना, volume entering per second. तो बेसिकली क्या है, आता कहाँ से, एरिया को अगर हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम. तो वॉल्यूम बाय टाइम, एरिया लेंथ, एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो एरिया इनटू वेलोसिटी हो गया. तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड इज एरिया इनटू वेलोसिटी, A1 V1. ठीक है. और volume of liquid entering per second is A1, mass of liquid entering per second. देखो वॉल्यूम हमने निकाल लिया था, वॉल्यूम इज A1 V1, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड निकल गया. सिमिलरली मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड, इधर से जो निकल रहा है उसका मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड वो क्या हो जाएगा, A2 V2 into ρ2. If there is no loss of liquid in the tube and the flow is steady, मतलब जितना लिक्विड इसके अंदर जा रहा है अगर इससे बाहर भी निकल रहा है विदाउट एनी लॉस यहाँ पे, so in that case if there is no loss of liquid in the tube and the flow is steady, then mass of liquid entering per second at A is equal to mass of liquid leaving per second at B. So this will be equal to A1 V1 into ρ1 is equal to A2 V2 into ρ2. ठीक है. सो जितना लिक्विड का मास एंटर कर रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हम लोग ये मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग और लीविंग जो था उसको इक्वेट कर देंगे, राइट, क्योंकि देयर इज नो लॉस ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब. नाउ इफ द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, है ना, कंप्रेस नहीं कर सकते, तो जो डेंसिटी यहाँ पे है ना, वही डेंसिटी इधर भी होगा, राइट. सो इफ द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, उस केस में जो डेंसिटी है वो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 होगा, है ना, दोनों पॉइंट पे डेंसिटी सेम हो जाएगा. सो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो इससे क्या आएगा आपको कि A1 V1, ठीक है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, क्योंकि ρ1 ρ2 बराबर हो गए तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. एंड जो ये A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है, इससे हमारा A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और एरिया इंटू वेलोसिटी कॉन्स्टेंट का मतलब, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं. ठीक है. तो इसी इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू velocity of flow of liquid through that area of cross section is always constant. AV is always constant. Now if it is constant, then area into velocity at one point will be equal to area into velocity at the other point. So that means A1 V1 is equal to A2 V2.
So this is equation of continuity. ठीक है? क्लियर है बच्चों? Is this clear to everyone? Yes. So जब हम कह रहे हैं कि A into V constant है, मतलब area into velocity of liquid flowing through that area of cross section is constant. That means the velocity of liquid is inversely proportional to area of cross section. है ना? Velocity is inversely proportional to area of cross section. तुम लोग नोटिस किए होगे जब पता नहीं तुम लोग गार्डन में if you have watered मतलब if you do gardening and you have watered the garden, पाइप के थ्रू जब पानी छोड़ते हैं तो कभी अगर हमें ज्यादा वेलोसिटी से पानी को छोड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके माउथ को हम लोग और छोटा कर देते हैं, मतलब उंगली से दबाते हैं तो बहुत तेजी से दूर तक जाता है पानी. नोटिस किया हो ना? तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम कर रहे होते हैं, तो उससे स्पीड इंक्रीज कर जाता है ना? इट मीन्स दैट लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द स्मॉलर विल बी द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो एंड वाइस वर्सा. So it is due to this reason that deep water runs slow or slow water runs deep, and the jet of falling water becomes narrow as it goes down. ठीक है, नैरो इसीलिए क्योंकि स्पीड जो है वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, नीचे जा रहा है तो उस केस में नैरो होता चला जाता है. Now volume flow rate, it is equal to the volume of liquid flowing per second through a cross section of the tube, that is dV by dt. It is equal to A into V. So where A is the area of cross section of tube and V is velocity of liquid flow. So rate of flow of volume dV upon dt, capital V volume को represent कर रहा है, is equal to area into area of cross section into velocity of flow. मास ऑफ फ्लो रेट क्या हो जाएगा, वही डेंसिटी को अगर हम वॉल्यूम फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो रो इंटू डीवी बाई डी टी इज मास फ्लो रेट. तो वॉल्यूम फ्लो रेट डीवी बाई डी टी हो गया एवी के बराबर, मास फ्लो रेट रो डीवी बाई डी टी हो गया, है ना? रो डीवी बाई डी टी का मतलब रो इंटू ए इंटू वी. और इफ फ्लूइड इज कंप्रेसिबल देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज A1 V1 rho 1 is equal to A2 V2 rho 2. अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, है ना, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तभी फिर हम लोगों ने ये पूरा डेरिवेशन किया था. तो यहाँ पे अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल है उस केस में A1 V1 rho 1 is equal to A2 V2 rho 2. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. समझ में आ रहा है तुम लोग को? Yes. कि बस कथा राम कथा की तरह सुनते चले जा रहे हो कि सर बड़ा अच्छा कथा सुना रहे हैं, आज सुनते हैं, लंबा चलते जाएगा. रामायण की कथा चल रही है ना? नहीं? Now example 17th. Now water flows through a horizontal pipe of varying cross section at the rate of 20 liters per minute. Determine the velocity of water at a point where diameter is 4 centimeter. ठीक है. So So यहाँ पे water is flowing through a horizontal pipe of varying cross section at the rate of, तो dV upon dt, rate of flow of volume of liquid is equal to 20 liters per minute.
ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द पॉइंट वेयर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है जहां पे डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, by equation of continuity, pi d1 square by 4, ये एरिया हो गया, इनटू मान लो हमारे पास एक लिक्विड है, यहाँ पे इसका डायमीटर d1 है, यहाँ डायमीटर d2 है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है। सो पाई d1 स्क्वायर बाय 4 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, a1 v1 is equal to a2 v2. So a1 मतलब pi d1 square by 4 into v1 is equal to pi d2 square by 4 into v2। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है, राइट, ये हम लोग एक मिनट, I'll just do it once again, okay? So rate of flow of volume, वही जो dv upon dt कर रहे थे, this is equal to 20 liters per minute। तो लीटर्स को अगर हम लोग मीटर क्यूब में करेंगे तो 20 लीटर, ठीक है। हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू, ठीक है, सो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, राइट। 20 लीटर्स पर मिनट, एक मिनट, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, और 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग को इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 20 लीटर को मतलब 20/1000, राइट, और मिनट मतलब 60 सेकेंड। 20/1000 और 60, 23 हो गया, 10⁻³ ओके। So 1/3 into 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया वॉल्यूम। अब ये जो डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट अ पॉइंट वेयर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। सो अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे रेडियस 4/2 2 सेंटीमीटर हो गया, मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.02 मीटर हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन this is equal to pi r square. So this is 3.14 into 0.02 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं। So we have 3.14 into 0.02 square, 1.256 into 10⁻³ So this is 1.256 10⁻³ ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया हमारा, है ना। नाउ सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम इज dv/dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज a into v और dv/dt। हम लोगों को वेलोसिटी v निकालना है। v इज इक्वल टू 1/a into dv/dt। dv/dt हमें पता है 1/3 into 10⁻³
divided by a मतलब 1.256 10 to the power minus 3. So this is equal to 1 divided by 3 into 1.256. So this is 0.265 meter per second. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. विल स्टॉप हियर और इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? एक दो क्वेश्चन भी रह गया और बर्नौलीज थ्योरम हम लोग का रह गया, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके ओके सर. चलो 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर मैथ्स की क्लास शुरू करते थैंक यू सर. हैं. चलिए बाय, टेक केयर. Thank Thank you, sir.